Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is the Union Executive. And what we will study in this chapter about the President, the Vice President, the Prime Minister and the Council of Ministers, about a case study and Council of Ministers. The executive is that part of the government that executes or puts into action the laws passed by the legislature. लेजिस्लेचर क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी. ठीक है. एग्जीक्यूटिव क्या करती है? जो लेजिस्लेचर जो लॉ पास कराती है, लॉ बनाती है, उनको एग्जीक्यूट कराती है यानी कि लागू कराती है. द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट. यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? वन बाय वन हम रीड करेंगे. फर्स्ट है प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. फर्स्ट सिटीजन होता है प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द स्टेट होता है. ही शी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. इन थ्योरी द प्रेसिडेंट पोजेस considerable power with few exception. Most of the authority rested in the president is in practice exercised by the council of ministers headed by the prime minister. जितने भी president काम करता है वो सारे prime minister की सलाह पे करता है, prime minister और council of ministers के साथ. Do you know the council of ministers consists of the cabinet ministers. Now president के elections कैसे होते हैं? Election, an electoral college elects the president of India. It consists of the elected members of both the houses of parliament. president को कौन चूज करते हैं? कुछ electoral college elect करते हैं president को, जैसे कि जो elected member होते हैं दोनों houses के, and the elected members of state legislative assemblies and the elected members of the legislative assemblies of the union territories of Delhi and Pondicherry. ये सब मिलकर प्रेसिडेंट को चूज करते हैं. नाउ टर्म ऑफ ऑफिस. प्रेसिडेंट जो है वो 5 ईयर के लिए काम करता है. ठीक है. कितना टेन्योर होता है? टाइम पीरियड होता है 5 ईयर्स का. He can be re-elected for a second term. To resign from office, the president has to write a letter of resignation to the vice president, who has to convey the letter to the speaker of the Lok Sabha. अगर president को resign करना हो तो उसे एक resignation letter लिखना होता है vice president को, जो कि वो letter speaker of the Lok Sabha तक पहुंचाता है. The power of the president of India can be considered under 5 heads. First is administrative and executive powers. Second, legislative powers. Third, judicial power. Fourth, the financial and other powers. And fifth is the emergency power. तो ये power होती हैं. One by one हम इनको discuss करेंगे. Now, do you know the president can be removed from office only through a specific constitutional procedure called impeachment. अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, हटाना है, तो सिर्फ वो इम्पीचमेंट से ही रिमूव कर सकते हैं. ये एक स्पेशल प्रोसीजर होता है. नाउ लेट अस डिस्कस द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट वन बाय वन. First is administrative and executive powers. The executive power of the union vests in the president and is exercised by him either directly or through officers subordinate to him. And he is the supreme commander of the defense forces. He also appoint prime minister और prime minister के advice पर other ministers को भी president appoint करता है. The judges of the supreme court, the high court, the governor of the state, ambassador to foreign countries, chairman and other members of the union public service commission all are appointed by the president, and the commissioner and members of the election commission are appointed by the president. Now, do you know all treaties and agreements with foreign countries, जितने भी हम treaty और agreement करते हैं foreign country के साथ, are made in the name of the president of India. तो किसके नाम से बनते हैं? इंडिया को कौन represent करता है उन treaties के लिए? president of India. Second है legislative powers. Legislative means regarding law. ठीक है. एक बिल जो है, ठीक है, वो जब तक पास नहीं होता, जब तक लॉ नहीं बनता, जब तक प्रेसिडेंट के उस पर साइन नहीं हो जाते.
जब एक बिल प्रेसिडेंट के सामने आता है आफ्टर पासिंग थ्रू लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, फिर प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है, तो प्रेसिडेंट को अगर लगता है इस लॉ में कुछ चेंजेस करने चाहिए तो वो चेंजेस को, सजेशन को भेज देता है दोबारा से पार्लियामेंट में। और ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो लोकसभा या राज्यसभा है उसमें उन सजेशन को माने भी, लेकिन दोबारा अगर वो बिल भेजते हैं तो प्रेसिडेंट को उन पर साइन करने पड़ते हैं। इसीलिए किसी भी बिल को लॉ बनाने के लिए प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। If the parliament is not in session and need arises, the president can on his own make laws which become effective immediately. Such laws are called ordinance, and however the ordinance so issued has to be placed before the parliament for approval. अगर पार्लियामेंट सेशन में, ठीक है, कुछ इम्प्रूव करना है, प्रेसिडेंट को लगता है कोई लॉ बनाना चाहिए, तो वो खुद से लॉ बना सकता है जिसको ऑर्डिनेंसेस कहते हैं, लेकिन उस लॉ को एप्लीकेबल करने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल होना जरूरी होता है। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर, जितने भी कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, उनके जजेस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। उसके अलावा प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट की जो भी पनिशमेंट होती है, ठीक है, उसको माफ़ भी कर सकता है और उसको बढ़ा भी सकता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पावर्स। All money bills are introduced in the Lok Sabha with the permission of President. Emergency power. The President of India has been given wide powers to meet any emergency. During emergency, the President can suspend partially or even wholly the fundamental rights guaranteed to every citizen under the Constitution. जब कोई emergency आती है, ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट एकदम से collapse हो गई है या कोई इशू आ गया है, तो उस टाइम पर emergency पावर में पूरी पावर किसके हाथ में आ जाती है? प्रेसिडेंट के हाथ में, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड के लिए जो सिटीजन को कॉमन फंडामेंटल राइट मिले होते हैं वो भी कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाते हैं। इधर आप देखोगे, ये आपको जो प्रेसिडेंट अब तक के रहे हैं उन सबकी पिक्चर दी हुई है, ये आप रीड करेंगे। फाइन। नेक्स्ट इज एन इमरजेंसी मे अराइज अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। कैसे इमरजेंसी आती है, किसको हम कहेंगे कि इमरजेंसी है? अब पावर प्रेसिडेंट के पास आ जाएगी। इमरजेंसी अराइजिंग आउट ऑफ वॉर और एन अटैक फ्रॉम अदर कंट्री और इंटरनल डिस्टर्बेंस। कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस है या दूसरी कंट्री ने अटैक किया है, ठीक है, कोई वॉर की सिचुएशन आ गई है, उसको हम इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। और इमरजेंसी ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, पार्लियामेंट अच्छे से काम नहीं कर पाता, उस टाइम को हम इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है तो उसमें भी हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। Next is for the second time emergency was declared when we had to fight a war with Pakistan. पहली इमरजेंसी जब चाइना के साथ वॉर हुई थी, सेकंड जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुई तब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। एंड लास्ट इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन जून 1975 एंड द कंट्री वाज फेस्ड विद द ग्रेव डेंजर टू नेशनल सिक्योरिटी। इट वाज लिफ्टेड इन 1977। 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी जब नेशनल सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी ऐसा महसूस हो रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। नाउ हाउ द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज पावर। कैसे प्रेसिडेंट अपनी पावर को यूज करता है? प्रेसिडेंट अपनी पावर को सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही यूज कर सकता है। ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस, और वो बाउंड होता है, मतलब उसे एडवाइस जो है मिनिस्टर्स की वो माननी ही पड़ती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द नेशनल हेड टू द एक्सटेंट। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक वाइस प्रेसिडेंट भी चूज करता है एंड ही इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए? क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जैसे अ कैंडिडेट टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट पोजेस द सेम क्वालिफिकेशन एज आर एसेंशियल फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। मोर ओवर जो भी प्रेसिडेंट बनने के लिए जितनी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है सेम वाइस प्रेसिडेंट के लिए होती है। ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड टू द राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है टर्म। कितने टाइम पीरियड के लिए होता है? सेम 5 ईयर्स के लिए। और रिमूव कैसे कर सकते हैं? थ्रू इम्पीचमेंट ओनली, ठीक है।
नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब वैसे रियल में हेड ऑफ द कंट्री तो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन रियल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बिना प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। द प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स हाईएस्ट डेजिग्नेशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, जितना कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें हाईएस्ट डेजिग्नेशन होती है प्राइम मिनिस्टर की। ही इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी विच हेड्स द गवर्नमेंट। हिज फंक्शंस आर एज फॉलोज। क्या क्या करता है प्राइम मिनिस्टर? द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल्स। ठीक है, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करता है, फिर प्रेसिडेंट को उनके अपॉइंटमेंट के लिए एडवाइस करता है। ही शी एलोकेट्स पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर। पोर्टफोलियो देता है अलग अलग मिनिस्टर को कि किसको कौन सा विभाग देना है। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती हैं उनको प्रिसाइड्स प्राइम मिनिस्टर करता है, बट चीफ डिसीजन मेकर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, he she is the chairperson of the National Planning Commission that is instrumental in the economic advancement of the country। तो कंट्री की इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए जो कमीशन काम करती है, नेशनल प्लानिंग कमीशन, चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो उसका चेयरपर्सन होता है। The Prime Minister communicates to the President all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the country and proposal of legislation। तो प्राइम मिनिस्टर हर एक बातचीत, हर एक एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को सभी मैटर्स को लेकर। The Prime Minister represents the country in high-level meetings and international organizations that require the attendance of the highest government office। और जहाँ भी किसी मीटिंग के लिए इंडिया के हाईएस्ट पर्सन, हाईएस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल की ज़रूरत होती है, ये सारी मीटिंग कौन अटेंड करता है कंट्री की तरफ से? प्राइम मिनिस्टर। Next is the Prime Minister can use his discretion over disposal of two national funds, the Prime Minister National Relief Fund and the National Defence Fund। ये दोनों फंड्स को अपनी मर्जी से यूज़ कर सकता है। These funds are used to relieve to families of those killed in natural calamity। जो नेचुरल कैलेमिटी, फ्लड वगैरह, साइक्लोन वगैरह में जो फैमिली सफ़र करती है उनके रिलीफ के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। नेक्स्ट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। रियल पावर जो होती है एग्जीक्यूटिव की वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है। द एग्जीक्यूटिव वर्क्स थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड पोर्टफोलियो, जैसे डिफेंस, फाइनेंस, इंडस्ट्री, कल्चर, एग्रीकल्चर, रेलवेज एट्सेट्रा। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और उन डिपार्टमेंट के हेड को कैबिनेट मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर कहते हैं, और एक उनके साथ डिप्टी मिनिस्टर होता है जो मेन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के एब्सेंस में काम करता है। नेक्स्ट है सिविल सर्विसेज। The cabinet makes important decisions and frames policies. The minister in charge of a particular department execute these policies through the civil servants। ठीक है, सिविल सर्विसेज क्या होती हैं? जो सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करता है वो सिविल सर्वेंट कहलाता है। जैसे IAS के एग्ज़ाम होते हैं, UPSC के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, इंडियन पुलिस कमिश्नर बनने के लिए या IPS बनने के लिए। तो ये सब लोग क्या करते हैं? ये मिनिस्टर्स के अंडर काम करते हैं, पूरे स्टेट को लुक आफ्टर करते हैं। वर्किंग ऑफ सिविल सर्वेंट, क्या क्या काम करते हैं? ठीक है, द कैबिनेट सेक्रेटरी होल्ड्स द हाईएस्ट पोस्ट अमंग द सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट में सबसे हाईएस्ट पोस्ट किसकी होती है? कैबिनेट सेक्रेटरी की। फाइन, नाउ secretaries who are in charge of administration of various ministers are under this person। जो अलग अलग सेक्रेटरीज होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, वो किसके अंडर काम करते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी के। दे आर फर्दर असिस्टेड बाय एडिशनल सेक्रेटरीज एंड जॉइंट सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज एंड अंडर सेक्रेटरीज। प्रीवियसली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल the work of the civil servants included mainly maintenance of law and order and collection of revenue। ठीक है, सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो किसी भी कंट्री की इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो कॉमन पीपल के साथ डे टू डे प्रॉब्लम में जुड़े होते हैं। नाउ लेट अस रिकॉल द चैप्टर।
The government is run by the executive, and who at the union level comprises of the president, the prime minister and the council of ministers. The President of India has administration, military, diplomatic, legislative, financial, judicial and emergency powers. This is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.